A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Let us try to understand what is happening here. Actually, here we are converting one solid into another solid. When you are converting one solid into another solid, at that time volume will remain the same. जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर परिवर्तन किया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेमिस्फीयर को सिलेंडर में चेंज किया जा रहा है. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर. Height of the cylinder we have to find out, and radius of the cylinder is 6 centimeter. So what is happening is the sphere is converted into cylinder and therefore the volume remains the same. हमेशा volume क्या होगा? Same होगा. Whenever two solids are interchanged, then their volume remains the same. Here also what is happening is the volume of the sphere is equal to volume of cylinder. So radius of the cylinder I will take it as capital R. The volume of the cylinder, let me take it as say capital V, and volume of the sphere, okay, I will take it as same capital V because volumes are not going to change. So volume of sphere, you know the formula. And one more thing we will do here is the radius is given in terms of decimal. So let me remove the decimal point. It is given as 4.2 सेंटीमीटर. इसका डेसिमल पॉइंट मैं निकाल देता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 42/10. I can write it as 42/10. Then again if you try to 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So what I have done is I have done the best job of removing the decimal point. 4.2 is no more present now. So what I will do is volume of sphere is 4/3 pi r cube is equal to volume of cylinder is pi r squared h. Volume of cylinder is pi r squared h. Children, you need not have to transpose everything and just waste your time here. What you can do is simply directly you can cancel this. Pi r cube is there. Now here pi cancels with pi, so what remains is 4/3 r cube. And what is the value of r cube? Just now we have written here 21/5 into 21/5 into 21/5 multiplied by radius square. Radius is 6 multiplied by 6 multiplied by height. Now I need to find out the height, so I'll transpose everything towards the left side. Left side से किधर मैं क्या करूँगा? Transpose करूँगा. So what I'll write here is 6/1. Here also I'll write 6/1. So this will be equal to 4/3 multiplied by 21/5 multiplied by 21/5 multiplied by 21/5 multiplied by 1/6 into 1/6. What I have done here is I have taken the reciprocal. मैंने यहाँ पर क्या किया है? रेसिप्रोकल लिया है. तो रेसिप्रोकल लेने के बाद अब देखिए जो कॉमन टर्म्स कैन बी कैंसल्ड एंड द रिमेनिंग थिंग्स वी हैव टू डिवाइड हियर. सी लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर. व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज 3 2s are 6. आई विल राइट हियर and 3 7s are 21. 3 2s are 6, 3 7s are 21. Again here 3 2s are 6 and 3 7s are 21. So 3 2s are 6, 3 2s are 6. Now here you can see here 2 2s are 4. So this 2 2s are 4. So this 4 cancels with 4. Now here again you can just check it out. 3 1s are 3. 3 1s are 3 and 3 7s are 21. So what we are getting here is 7 multiplied by 7 multiplied by 7 divided by 125. So 7 7 are 49. 49 into 9 is 343. 7 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 is 125. So this is 343 divided by 125. And children, I think you are smart enough to do this problem. See 343 divided by 125, if you do it, let us see what we get. 125, 2s is 250 children. Then again here what remains is 3. 14 minus 5 is 9. So I'll take a decimal point here. Then again if I take 0 here, then how much I'll get here?
If I take 7, 7 5 are 35, carry 3, 7 2 are 14, 14 plus 3 is 17, carry 1, 7 1 are 7 plus 1 is 8. So this is 875 again. Then 10 minus 5 is 5, 12 minus 7 is 5, and then again if I take it, just see here what I can take here. This will be 50. If I take 4 za, 125 into 4, 125 into 4 is 500. So what remains here is 50. So finally what I am going to get is, this is equal to 2.74 centimeters is the height of cylinder. So height of cylinder is equal to 2.74 सेंटीमीटर्स. अब यहाँ पर दूसरी बात हो रही है, क्या हो रहा है देखो, मेटालिक स्पीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पीयर. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर. यहाँ आप देखिए, एक स्पीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरा स्पीयर है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तीसरा स्पीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और उसको सबको पिघलाकर एक बड़ा स्पीयर बनाया जा रहा है. दैट मीन्स 3 स्पीयर्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन स्पीयर. दैट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द थर्ड स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्पीयर. पहला स्पीयर का वॉल्यूम प्लस दूसरा स्पीयर का वॉल्यूम प्लस तीसरा स्पीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़ा स्पीयर का वॉल्यूम. दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस ये होगा 4/3 पाई R2 क्यूब. इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 कैपिटल R क्यूब. So here if I take the common factor, this is 4/3 pi, ब्रैकेट के अंदर बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब. अगेन एक बार देख लीजिए, इन तीनों स्पीयर को पिघलाकर एक बड़ा स्पीयर किया है. पहला स्पीयर प्लस दूसरा स्पीयर प्लस तीसरा स्पीयर इज इक्वल टू बड़ा वाला स्पीयर, यानी पहले स्पीयर का वॉल्यूम प्लस दूसरे स्पीयर का वॉल्यूम प्लस तीसरे स्पीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़ा स्पीयर का वॉल्यूम. तो वही मैंने किया है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V. सो इफ आई राइट द फॉर्मूलाज, व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेट कॉमन हियर, 4/3 पाई. चिल्ड्रन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन शिफ्टिंग ऑल दोस थिंग्स. दिस 4/3 cancels here, pi cancels with pi. So what remains here is R1 cube plus R2 cube plus R3 cube. R1 cube plus R2 cube plus R3 cube is equal to big R cube. डोंट, और एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले स्पीयर का वॉल्यूम अलग सा निकालना है, दूसरे स्पीयर का वॉल्यूम अलग सा निकालना है, तीसरे स्पीयर का वॉल्यूम अलग सा निकालना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन इट, काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा. यू हैव टू मैनेज टाइम. तो जो सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ उस टेक्निक को आप यूज़ कीजिए. तो R1 क्यूब यानी बच्चों 6 का क्यूब होगा, R2 क्यूब यानी 8 का क्यूब होगा, और R3 क्यूब यानी 10 का क्यूब होगा इज इक्वल टू R का क्यूब, इज इक्वल टू R का क्यूब. यानी पहले स्पीयर का क्यूब प्लस दूसरे स्पीयर का क्यूब रेडियस का क्यूब प्लस तीसरे स्पीयर के रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू बड़ा स्पीयर का रेडियस का क्यूब. तो 6 का क्यूब है बच्चों 216, 8 का क्यूब होता है 512, 8 8 जा 64 और 64 इंटू 8 होता है ये, प्लस 1000 इज इक्वल टू स्मॉल R क्यूब. इसको आप अगर प्लस करोगे आप तो देखिए 16 प्लस 12 होगा, 16 प्लस 12 होगा 28 प्लस ये 20 यानी 28. 10 प्लस 5 होगा 15, 15 प्लस 2 होगा 17 इज इक्वल टू R क्यूब. यानी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, R का क्यूब इज इक्वल टू 1728, यानी R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728. और अगर आप क्यूब रूट ऑफ 1728 करोगे बच्चों तो वो होगा 12 सेंटीमीटर.
यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। यानी रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, इतना ही है बच्चों। कितना सिंपल है ना। यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर किया, यहाँ पर 3 स्फीयर का वॉल्यूम हमने क्या किया, इक्वल टू एक बड़ा स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हमने कर दिया। दैट्स ऑल। कितना सिंपल है मैथ्स।